ان سوالات کو محض سوال جواب بیان کرنے کے ساتھ اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہماری مکمل کوشش ہوگی کہ ہر سوال کے جواب کو اچھے سے سمجھایا جائے۔ جی عزیز طلبہ، سب سے پہلا سوال ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے پڑھا ہے، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب اس کے دیگر ایم سی کیوز: نعت، منقبت، ایم سی کیوز۔ نعت وہ نظم جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ منقبت وہ نظم جس میں اولیاء اللہ، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے، وہ منقبت کہلاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی وہ نظم جس میں کسی طویل داستان کو نظمیہ صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، سوال یہ ہے کہ داستان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، جس طرح آپ افسانہ پڑھتے ہیں، جس طرح آپ افسانے کے علاوہ کہانی پڑھتے ہیں، جس طرح آپ ناول پڑھتے ہیں، ایسے ہی بالکل داستان بھی پائی جاتی ہے۔ ناول سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے کردار گوشت پوش کے انسان ہوتے ہیں، اور داستان صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اور عام طور پر اس میں جنات، پریاں یعنی غیر مرئی مخلوقات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں دوسرے ایم سی کیوز کی طرف۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے، مثلث کے ہر بند میں مصرے ہوتے ہیں، 2، 3، 4، 5۔ تو مثلث کے ہر بند میں مصروں کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں سب سے آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ نے 9th کلاس میں اسلامیات پڑھی۔ اسلامیات میں قرآن پاک کا جو پورشن تھا، آپ نے وہاں پڑھا تھا الدرس الاول پہلا سبق، الدرس الثانی دوسرا سبق، الدرس الثالث تیسرا سبق۔ ثالث سے ہی مثلث ہے، یعنی وہ نظم جس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق رابع روبن سے بنا ہے۔ جیسے آپ وضو کے مسائل میں کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسا، روب سر کا مسا بھی کافی ہے فقہ آناف کے نزدیک۔ الدرس الخامس پانچواں سبق، تو خامس پانچویں کو کہتے ہیں، اور وہ نظم جس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد 5 ہو، اسے اسی نسبت سے مخمس کہتے ہیں، اور جب کسی ایک بند میں مصروں کی تعداد 4 ہو تو اسے ربائی کہتے ہیں، اور ربائی بھی ایک الگ سے صنف ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نظم کے ہر بند میں 4 ہو مصروں کی تعداد، تو اسے کیا کہیں گے؟ تو عزیز طلبہ، یہ اگلا سوال اسی کے متعلقہ ہے کہ وہ نظم جو 4 مصروں کے بندوں کی شکل میں لکھی جائے، اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے کہیں گے مربع، مخمس، مرثیہ یا ترکیب بند۔ تو عزیز طلبہ، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو وضاحت کی اور سمجھایا، اسے مربع کہیں گے، یعنی روبن سے وہ نکلا ہے، روبن 4 کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کہتے ہیں؟ جی، مثلث، مربع، مخمس، مسدس۔
अजीज तलबा, वही मिसाल अदरस सादिस, सादिस 6 को कहते हैं। तो ये सुदुस से मुसद्दस बना है, यानी वो नज्म जिसके हर बंद में मिसरों की तादाद कितनी हो, 6 हो, वो मुसद्दस कहलाएगा। अब इसकी मशहूर तरीन मिसाल आपकी सेकंड ईयर की किताब में शामिल निसाब जो नज्म है जवाब शिकवा, वो मुसद्दस की मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। अजीज तलबा, मुखम्मस उस नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद के मिसरों की तादाद होती है। अब ये हम 2, 4, 5, 6 ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुखम्मस खामिस से बना है, 5 को कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुखम्मस वो नज्म जिसके हर बंद में मिसरों की तादाद 5 होगी। अजीज तलबा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, जिस नज्म में मैदान करबला के अलमनाक वाक़यात और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का जिक्र किया जाए उसे कहते हैं मरसिया, मसनवी, कसीदा या मनकबत। अजीज तलबा, दुरुस्त जवाब है मरसिया। मरसिया, अब इन सब की तारीफ भी आपको दोहराए देते हैं, तवज्जो कीजिएगा। मरसिया अरबी जुबान के लफ्ज रसा से निकला है और रसा के माना है गम, हुज्न, मलाल, दुख। तो वो नज्म जिसमें किसी के बिछड़ जाने या दुनिया से चले जाने में का जिक्र हो और साथ उसकी तारीफ हो, साथ साथ उसके बिछड़ जाने का गम किया जा रहा हो, उस नज्म को मरसिया कहेंगे। मसनवी, अच्छा यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी वालदा की याद में एक मरसिया लिखा, इसी तरह मिर्जा गालिब ने भी मरसिया लिखा। लेकिन मरसिया में बड़े नामवर लोग जो गुजरे हैं, मीर अनीस और मिर्जा दबीर, जिनके आपने मरसिए अपना 9th क्लास में भी पढ़ा है। एक शेर बड़ा मशहूर है मीर अनीस का, गालबन प्यासी जो थी सपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। बहरहाल बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़्यादा किया जाने लगा, इसलिए मरसिया उनके साथ ख़ास समझा जाने लगा कि मरसिया वो नज़्म होगी जिसमें मैदान करबला का जिक्र किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, मरसिया कोई भी शख्स अपने किसी भी बिछड़े हुए दोस्त, यार या रिश्तेदार के लिए लिख सकता है। मसनवी, इसकी भी वजाहत कर दें। मसनवी वो नज्म जिसमें तवील दास्तान को नज़मिया सूरत में पेश किया जाता है। इसमें हर शेर का रदीफ काफिया दूसरे शेर के रदीफ काफिये से मुख्तलिफ होता है। कसीदा किसी कसद करने से है, इरादा तन यानी दिल के इरादे के साथ किसी जिंदा इंसान की तारीफ करना कसीदा कहलाता है। पहले दौर में बड़े बड़े बादशाहों ने अपने दरबारों में कसीदे पढ़ने के लिए स्पेशल शायर रखे हुए थे। शायरों को, शोरा इकराम को तनख्वाह पर रखा हुआ था जो बादशाह की शान में कसीदे कहा करते थे। मिर्जा गालिब ने भी कसीदा कहा। इसी तरह आपने एक कसीदा अरबी ज़ुबान, ये खालिस्तान अरबी ज़ुबान की सिनफ है, और आपने सुना है कसीदा बुर्दा शरीफ के इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कसीदा लिखा। मनकबत, मनकबत वो नज़्म जिसमें अंबिया इकराम
सहाबा इकराम, औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की जिंदगियों की बात की जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनके औसाफ बयान किए जाएं, वो नाज़्म मनक़बत कहलाती है। अब एक सवाल पैदा होता है, मनक़बत अंबिया या सहाबा की शान में जब कही जाएगी तो मरसिया भी तो अंबिया और सहाबा की शान में अगर कहा जाए वो जा चुके हैं, तो मनक़बत में भी तो सहाबा मौजूद तो नहीं है। तो अजीज तलबा, इन दोनों में आपने फ़र्क यूं याद रखना है, मनक़बत में सिर्फ तारीफ बयान की जाती है, जबकि मरसिया में गम, हुज़्न, मलाल, दुख की बात की जाती है। किसी के बिछड़ जाने पर दुख दर्द का इजहार किया जाता है, साथ साथ उसके औसाफ का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन दुख दर्द का इजहार ज्यादा किया जाता है। अजीज तलबा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा मीर अनीस के बारे में, कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की वजह शोहरत क्या है। अभी पिछले एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था इन दोनों की वजह शोहरत क्या है। चलिए जवाब देखते हैं। नात गोई, क्या ये नात ज्यादातर कहते थे? मसनवी गोई, क्या ये मसनवी कहते थे? गजल कोई, या इन्होंने गजलियात बहुत ज्यादा लिखी हैं और गजल में शाहकार गजलें लिखी हैं, इस वजह से मशहूर थे? या दाल ऑप्शन है कि मरसिया गोई, कि इन्होंने मरसिए ज्यादा लिखे हैं, इस वजह से ये मशहूर है। अजीज तलाबा, ये मरसिया गोई की वजह से मशहूर हैं कि इन्होंने मरसिए बहुत ज़्यादा लिखे हैं और मरसिया लिखने की वजह से मशहूर हैं। इमाम हुसैन और करबला के अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मरसिए लिखे हैं वो इन्हीं लोगों ने लिखे हैं। किन दोनों ने? मिर्ज़ा अनीस ने और मिर्ज़ा दबीर ने। अजीज तलबा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, मीर हसन और पंडित दिया शंकर नसीम दो अहम और मुमताज नाम हैं। अब सवाल ये है मसनवी निगारी के हवाले से कि इन्होंने मसनवियां लिखी हैं, कसीदा निगारी के हवाले से कि इन्होंने कसीदे लिखे हैं, मरसिया निगारी के हवाले से ये अहम नाम है, या खाका निगारी यानी शख्सी खाके। खाका निगारी क्या होता है कि आप लफ्ज़ों में किसी शख्स के ज़ाहिरी हुलिये को, उसके आदात और औसाफ को इस अंदाज में बयान करते हैं कि पढ़ने वाले के ज़हन में उसकी पूरी एक शख्सियत की तस्वीर बन जाती है। तो आप इस सिन्फ को खाका निगारी कहते हैं। अजीज तलबा, अब इन चारों में से दुरुस्त जवाब है मसनवी निगारी। आपसे मैंने पहले कहा कि मसनवी वो नज्म है जिसमें किसी तवील दास्तान को नज़मिया सूरत में बयान किया जाता है। और तवील दास्तान जिस तरह आपने अफसाना पढ़ा, नावल पढ़ा, कहानी पढ़ी, ऐसे ही दास्तान भी कहानी की एक ऐसी सिंफ है जो सदियों पर मुहित होती है और उसमें गैर मरी मखलूक़ात यानी जिन्नात, परियों, चुड़ैलों का भी, नज़र ना आने वाली मखलूक़ात का भी जिक्र होता है। और ये तवील होती है, कई कई सदियों पर मुश्तमिल होती है। आजकल इसके लिखे जाने का रवाज तकरीबन ख़त्म हो गया। उसकी वजह हमारे एडवांस दौर में हर कोई मसरूफ़ है, इसलिए उसके बाद दास्तान लिखना लोगों ने छोड़ दी। उसके बाद नावल पर आ गए। नावल से भी ज़्यादा फिर जिसको शोहरत मिली वो मुख्तसर चीज़ क्या थी? अफसाना। फिर अफसाने से भी ज़्यादा अफसानचे को शोहरत मिलना शुरू हो गई। अफसानचा उससे भी बहुत कम, बिल्कुल छोटा, 5-6 लाइनों में इंसान पूरी कहानी को बयान कर देता है और कारी के ज़हन पर एक निशान छोड़ जाता है कि वो इससे क्या सबक हासिल करता है। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म आती जा रही है।
जैसे शॉर्टकट लगाने के चक्कर में हमारे यहाँ डॉलर्स कमाने के लिए आप रील्स देखते हैं कि 1 घंटा ये काम करें आप इतने डॉलर कमा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ने वालों में भी टाइम की किल्लत की वजह से शॉर्टकट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से दास्तान नावल तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। पढ़ने बहरहाल अभी भी ज़िंदा हैं बहुत सारे लोग जो लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसी शायर ने कहा है शायद ये किताबों की आखिरी सदी है, और ऐसा महसूस भी होता है। चलिए खैर, इस अलमिया के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए ये दुख की बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नज्म की तरफ। सवाल नंबर 9, नज्म के लुग़वी माना क्या है? नज्म के लुग़वी माना है औरतों की बातें करना, दिल की बात करना, लड़ी में परोना और ख्यालात का इजहार करना। अजीज दोस्तों, असल में यहाँ पे नज्म के लुग़वी माना है लड़ी में परोना। ठीक है जी। यहाँ थोड़ी सी वजाहत ये कि आपने वो जो तारीफ पढ़ी थी नहम क्लास में, दहम क्लास में और दीगर छोटी क्लासेस में, गज़ल के लुग़वी माना थे औरतों की बातें या औरतों से बातें, हुस्न इश्क की बातें, अपने दिल और जज्बात का इजहार करना। वो 3 बातें गज़ल की तारीफ में आती हैं। नज्म का लुग़वी माना है लड़ी में परोना। चलें यहाँ इस लफ्ज़ लुग़वी की भी वजाहत कर देते हैं कि लुग़वी लफ्ज़ क्या है। अजीज़ तलबा, लुग़वी लफ्ज़ बुनियादी तौर पर लुगत से बना है और लुगत का माना है परोना। लुगत का माना है डिक्शनरी, जिसे आप डिक्शनरी कहते हैं, लुगत ज़बान को कहते हैं। अहले ज़बान की वो किताब जिसमें अल्फाज के मुआनी बयान किए गए हों। तो आप बाज़ाहिर तो ये तारीफ करते हैं डिक्शनरी वो किताब होती है जिसमें मुश्किल अल्फाज के मुआनी बयान किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। लुगत वो किताब होती है जिसमें उस ज़बान के अल्फाज के मुआनी बयान किए जाते हैं। ठीक है। अब मुश्किल का लफ्ज़ मैंने क्यों ख़त्म किया? देखें, एक लफ्ज़ मुझे मुश्किल लगता है लेकिन वो आपको आसान लगता है। डिक्शनरी वाले ने तो वो जिक्र किया है। एक लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है, मुझे आसान लगता है। तो डिक्शनरी वाले ने, डिक्शनरी लिखने वाले ने, अल्फाज जमा करने वाले ने वो लफ्ज़ जिक्र किया है। तो इस तरह हमारा वो लफ्ज़ मुश्किल जो है वो तारीफ से खारिज हो जाता है। तो लुगत या डिक्शनरी ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें उस ज़बान के अल्फाज के मुआनी और मालूमात बयान की गई हों। बहरहाल तो नज्म के लुग़वी माना, नज्म चूंकि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो अरबी ज़बान की डिक्शनरी में हम नज्म के माना देखेंगे तो नज्म के माना है लड़ी में मोती परोना। ठीक है जी। अच्छा, अब हर सिन्फ का नाम रखने की एक वजह होती है। तो इसका नाम क्यों है? इसका नाम इसलिए है बेटे, जैसे आप तस्बीह की मिसाल लें। तस्बीह में एक इमाम होता है, बाकी दाने होते हैं, सब उसके नीचे परोए जाते हैं तरतीब के साथ। ऐसे ही शायर जब एक उन्वान के तहत बहुत सारे अशार कहता है तो वो सारे अशार एक ही मौजू को बयान कर रहे होते हैं, तरतीब से बयान कर रहे होते हैं, इसलिए उसको नज्म कहते हैं। अच्छा, गज़ल में ऐसा नहीं है। गज़ल में आप देखें हर शेर का मौजू अलग होता है। ये भी एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है, मालूमात याद रखनी है कि गज़ल में हर शेर का मौजू अलग होता है। मसलन हम इसकी सादा सी मिसाल लेते हैं। आपने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी है, हस्ती अपनी अहबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब इसमें देखें, ये पहला शेर है, मतला है,
اور مطلع کا موضوع کیا بنے گا کہ میر تقی میر نے اس میں دنیا کی بات کی ہے، دنیا کی حقیقت بیان کی ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ اس کا دوسرا شعر اسی غزل کا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب اس میں دیکھیے پہلے شعر میں جہاں اپنا دنیا کی حقیقت کی بات کی ہے، وہیں جب دوسرا شعر پڑھا ہم نے تو ہمیں محسوس ہوا جیسے میر تقی میر نے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے، اس کے ہونٹوں کی نزاکت بیان کی ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح نرم و نازک ہیں. تو عزیز طلبہ، ہر شعر کا موضوع الگ ہے، اور یہ صنف کس کی ہے؟ یہ غزل کی خاصیت ہے کہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم نے غزل کہی ہے اور ہر شعر میں ہی ایک ہی موضوع پہ بات ہو جائے ہم سے، ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے. غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع کے تحت بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا ہوگا یا ہو جائے گا تو اسے غزل مسلسل کہیں گے. اور یہ جو مثال ہم نے میر تقی میر کی غزل کی دی ہے، اسے غزل غیر مسلسل کہیں گے. عزیز طلبہ، ایم سی کیوز نمبر 10، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، یا اردو کا لفظ ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے. غزل کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا، ادھار لینا، عورتوں کی باتیں، یا ترتیب و تنظیم. تو غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں کی باتیں. ٹھیک ہے، یہ تعریف میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ عورتوں کی باتیں یا عورتوں سے باتیں، یا اس میں حسن و عشق کی بات کی جاتی ہے. عام طور پہ الجنس یمیل الی الجنس المخالف، جن سے مخالف کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا عورتوں کی باتیں. چلیے جی، 12 نمبر ایم سی کیوز ہے. ہر شعر کا موضوع الگ ہو سکتا ہے. کس میں؟ غزل میں، نظم میں، مسدس میں، آزاد نظم میں. عزیز طلبہ، ابھی غزل کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے اس پر بھرپور روشنی ڈالی ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہر شعر کا الگ موضوع ہو سکتا ہے. یہ غزل میں ہوتا ہے. یہاں پہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپشن بے جو ہے وہ درست ظاہر کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ غلطی سے یہ بے آپشن ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اس کا درست جواب الف آپشن ہے. غزل میں ہر شعر کا موضوع الگ ہو سکتا ہے، لیکن نظم میں ہر شعر کا موضوع ایک ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ حمد حمد ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، تو آپ جب حمد کہیں گے تو اس میں ساری تعریف اللہ کی بیان کریں گے. تو جب اللہ کی تعریف بیان ہوگی تو وہ حمد کہلائے گی. آپ ایک نظم کا عنوان نعت رکھتے ہیں تو اس میں ساری تعریف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی جائے گی. تو نظم وہ ہے جس کے ہر شعر کا موضوع ایک ہوتا ہے، اور غزل وہ ہے جس کے ہر شعر کا موضوع الگ ہو سکتا ہے. عزیز طلبہ، ایک آخری ایم سی کیوز، وہ نظم جو کسی شخصیت کی تعریف میں لکھی جائے. میں نے آخری ایم سی کیوز اس لیے کہا کہ ہماری آج کی کلاس کا یہ آخری ایم سی کیوز ہے. وہ نظم جو کسی شخصیت کی تعریف میں لکھی جائے اسے کیا کہیں گے عزیز طلبہ؟ اس نظم کو قصیدہ کہیں گے. کسی زندہ انسان کی تعریف کرنا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قصد کرنے سے نکلا ہے. قصد کرنا معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی ارادہ تن
کسی زندہ انسان کی تعریف بیان کرنا، کسی کی تعریف کرنا زندہ انسان کی قصیدہ کہلاتا ہے۔ اچھا، یہاں اس کے ایم سی کیوز میں نعت، مرثیہ، قصیدہ اور واسوخت ہے۔ نعت اور مرثیہ کی وضاحت تو ہو چکی ہے، واسوخت کی مختصر سی وضاحت یہ ہے عزیز طلبہ کہ جس میں شاعر اپنے محبوب کے ساتھ محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرے، اس کے رقیب کے ساتھ اس کے تعلقات کا ذکر کرے اور خود سے ناراضگی کا ذکر کرے کہ میرا محبوب مجھے ترجیح نہیں دیتا جبکہ میرے رقیب کو ترجیح دیتا ہے۔ رقیب کیا ہے عزیز طلب؟ جب محبوب ایک ہو اور محبت کرنے والے زیادہ ہوں تو وہ محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے رقیب کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے رقیب کہلائیں گے۔